یہ سوال جو ہے یہاں کے سیاستدانوں کی طرف سے آ جاتے ہیں. وہ سیاستدان یہ سوال کب کھڑے کرتے ہیں؟ جب وہ پاور میں آ جاتے ہیں, جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ پاپ کی گھنٹی ہے, یہ چور دروازے سے آئے گئے ہیں, یہ غلط طریقے سے لگے ہیں. لیکن جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تو ان کی بولی دوسری ہو جاتی ہے. اس وقت یہ کمیٹی نے رپورٹ دی, اس کو کیبنٹ میں دینا تھا اپروول کے لیے, اور کیبنٹ میں سیاست کاری کی گئی. ہم ساری جتنے بھی یہاں پہ مخلوط سرکاریں تھیں, چاہے یہاں پہ میجارٹی کی کوئی حکومت تھی, چاہے اس کے بعد کولیشن میں سرکاریں آئیں, ان سب نے اس پہ سیاست کاری کی. اور اس کے میں سمجھتا ہوں یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے کہ اس قوم کو تعلیم کے نور سے دور رکھا گیا. وہ بیچارہ راغب ہو گیا بچہ مزدوری کی طرف, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے یہ قانون جرم ہے. لیکن قانون جرم ہے, بڑے بڑی تقریریں کی گئی چائلڈ ڈیز پہ, لیبر ڈے پہ, لیکن جو تقریریں کر رہے ہیں وہی پہلے وائلیشن کر رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں حیا جاوید کے ساتھ وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن. ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے سجاد احمد پرے ہے, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سجاد احمد پرے ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں کے ملازمین کے لیے وقف کر دی. بہت سارے مسائل ہیں یہاں کے ملازمین کو. پہلے ان کی جو پریارٹی ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ڈیلی ویجر ملازمین ہیں انہیں مستقل کیا جائے. عرصے دراز سے یہ ملازمین بھٹکتے رہے, لیکن آج تک ان کی سنی نہیں گئی. وقتاً فوقتاً احتجاج کرتے رہتے ہیں, لیکن خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے. آج ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اس اعتبار سے کہ آنے والا بجٹ جو ہے انہیں ایک امید سی بندھی ہوئی ہے. اس بار انہیں مایوس نہیں کیا جائے گا, اور سرکار ان ملازمین کی خواہش پوری کرے گی جس کے لیے وہ عرصے دراز سے ترس رہے ہیں. سجاد صاحب, آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہماری اس نشریات میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. سجاد صاحب, کتنے مسائل ہم اجاگر کریں سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ عرصے دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں, جب سے میں نے بھی اس فیلڈ میں قدم سنبھالا تب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ سجاد صاحب اپنے ملازمین کو لے کے احتجاج پہ اتر آئے ہیں. کیا امیدیں ہیں اب کی بار سرکار سے؟ آپ دیکھیے, یہاں پہ جو ملازمین ہے 4.5 لاکھ کے قریب ہم کے ریگولر ملازمین ہے, گیسٹڈ ہے, نان گیسٹڈ ہے, جس میں سارے ملازمین آ جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیلی ویجرز کیجول لیبر جو 61,000 کے قریب ہے, جس میں ساری کیٹیگریز ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کر رہے ہیں. ریگولر ملازمین, گیسٹڈ, نان گیسٹڈ ملازمین کی بہت ساری مسائل ہے, لیکن جو ہمارا اس وقت برننگ ایشو ہے وہ ڈیلی ویجرز کیجول لیبر, نیڈ بیس ورکرز, سیزنل سی پی ورکرز, ایچ ڈی ایف, کنٹنجنٹ پیڈ, جو بھی مختلف ملازمین ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں, بنیادی کام انجام دے رہے ہیں, ان کی جو ریگولرائزیشن اور منیمم ویج ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ برننگ ایشو بنا ہوا ہے. اس حوالے سے سرکار کے سامنے ہم نے کئی اپنی بات رکھی. سرکار نے اس بات کو مانا, سرکار نے اس بات کو تسلیم بھی کیا, اور سرکار نے اس حوالے سے کمیٹیاں تشکیل دی, سب کمیٹیاں تشکیل دی, اور امید کی کرنیں نظر آئی کبھی کبھی, اور پھر آخر پر اس پہ سیاست کاری کی گئی. تو نتیجہ یہ نکلا, یہ سارا معاملہ سیاست کاری کی نظر ہو گیا. تو آج ہمیں ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ سرکار اس وقت سنجیدہ نظر آ رہی ہے, چاہے وہ ایل جی کی ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ مرکزی سرکار ہو. اس حوالے سے سنجیدہ نظر آ رہی ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ آج کے آنے والے بجٹ میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے گا. اور ریگولرائزیشن کے جو منتظر لوگ ہیں, پچھلے 25 برس سے جو منتظر ہے ریگولرائزیشن کے, ان کے مستقبل کے حوالے سے, ان کے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور سامنے آ جائے گا, اور ہمیں اسی بات کا انتظار ہے. تو مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ رما ہو جائے گا. سجاد صاحب, ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی سرکار اب کی بار لگتا ہے کہ کچھ سنجیدہ ہے, لیکن کچھ ایسے سوالات بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو یہاں آپ کے ملازمین ہیں کہیں نہ کہیں بیک ڈور انٹریز ہوئی, یا ڈپارٹمنٹس میں آپ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کیجول لیبرز کیسے آئے, کیسے ان کا وجود ہوا, کیا ان کے پیچھے کوئی سفارش تھی؟ ایسے سوالات ابھرتے آئے ہیں. تو کیا کہنا ہے آپ کا؟
देखिए, ये कोई आम आदमी ये सवाल नहीं करता है, क्योंकि ये सवाल जो है यहाँ के सियासतदानों की तरफ से आ जाते हैं। वो सियासतदान ये सवाल कब खड़े करते हैं? जब वो पावर में आ जाते हैं, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो उस वक्त वो कहते हैं कि ये पाप की घंटी है, ये चोर दरवाजे से आए गए हैं, ये गलत तरीके से लगे हैं। लेकिन जब वो अपोजिशन में होते तो उनकी बोली दूसरी हो जाती है। उस वक्त ये कहते हैं कि ये सोशल इशू है, ये ह्यूमन इशू है, ये 60,000 लोगों का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ वाबस्ता 5 लाख लोगों का मामला है, और 5 लाख नफूस का ये मामला है। उस वक्त दूसरी बोली वो बोलते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जब 94 में यहाँ पे मुकम्मल बैन लगाई गई, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में मुकम्मल बैन लगाई गई, उस वक्त लोग बढ़ते गए, आबादियाँ बढ़ती गई, कॉलोनीज़ बढ़ती गई, और उस वक्त जो मैन पावर यहाँ पे था, जो मुलाजमीन थी, वो दिन ब दिन रिटायर होते गए। एक मामला ये वर्कलोड बढ़ता गया, और दूसरी तरफ कोई सरकारी नौकरी में आता ही नहीं था। जब कॉलोनीज़ बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, तो सरकार, यहाँ के जो HODs थे, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, जो यहाँ के उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग थे, तो उन्होंने एक फ़ैसला ले लिया कि हम यहाँ पे एक नई शुरुआत करेंगे। जैसे 94 से पहले किया करते थे, डेलीवेजर्स को अपॉइंट करते थे, उनसे 7 साल काम लिया जाता था, 7 साल के बाद उनको रेगुलर किया जाता था। सेम उसी तरीके से एक धोखाधड़ी पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि आप आ जाओ, काम करो। काम हमसे लिया गया, काम बराबर लिया गया जो यहाँ के रेगुलर मुलाजमीन काम अंजाम दे रहे थे। और जब काम लिया गया तो उसके बाद, काम लेने के बाद, ये जब 7 साल गुजर गए तो हमने मुतालबा किया रेगुलराइजेशन के हवाले से। उस वक्त ये कहा गया कि आप बैन पीरियड के तहत लगे हो, बैन पीरियड के दौरान लगे हो, आप बैन के तहत लगे हो, आपकी कोई जवाजियत नहीं बनती है। उसके बाद हमने जदोजहद शुरू की। जब जदोजहद शुरू की तो सरकार ने कमेटियाँ बनाई, सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई, हाई पावर कमेटीज़ बनाई। जब उन हाई पावर कमेटीज़ ने हमारा सारा सब कुछ, जो चाहे हमारा रिकॉर्ड था, चाहे हमारी मेहनत थी, चाहे हमारी कुर्बानियाँ थी, चाहे हमारा काम, उन्होंने देखा कि लगभग सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पे हैं, लगभग 85% काम यही लोग अंजाम दे रहे हैं, बुनियादी काम, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आप PHE को ले लो, आप जल शक्ति जिसको आज कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को ले लो, PDD डिपार्टमेंट को ले लो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ले लो, हॉस्पिटल्स को ले लो, आप इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को ले लो, आप टूरिज्म, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर को, R&B को, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, आप सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आप देखोगे कि वहाँ पे डेलीवेजर कैजुअल लेबर वहाँ का बुनियादी काम चला रहा है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो सिफारिशात है, अपना जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट पेश करने के साथ साथ उन्होंने सिफारिश ये भी की है कि ये ह्यूमन इशू है, इनके साथ 5 लाख नफूस वाबस्ता है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनके साथ ज्यादती हुई है, इस मामले को एक बार एड्रेस करने की ज़रूरत है, एक बार मामला हल करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी सिफारिशां दी थी, उन्होंने भी एक रोड मैप दिया था। और आखिर पर उस रोड मैप का क्या हुआ? उस रोड मैप का ये हुआ, जब कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसको कैबिनेट में देना था अप्रूवल के लिए, और कैबिनेट में सियासतकारी की गई। हम सारी जितने भी यहाँ पे मखलूत सरकारें थी, चाहे यहाँ पे मेजॉरिटी की कोई हुकूमत थी, चाहे उसके बाद कोलिशन में सरकारें आई, उन सब ने इस पर सियासतकारी की। और उसके बाद जम्मू वालों को एक उम्मीद बनी थी कि अब उन्होंने BJP को पूरा मैंडेट दे दिया है, शायद BJP वाले अब कुछ ना कुछ करेंगे। यहाँ पे हमें ये लग रहा था कि PDP इस हवाले से बड़ी ऐलानात कर रही थी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन इशू है, ये सोशल इशू है, वो कोई ना कोई फैसला इस हवाले से ले लेंगे। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया, उन्होंने ये कहा कि हम SRO इशू करेंगे, इसमें अमेंडमेंट भी करेंगे। ना SRO इशू किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसमें अमेंडमेंट नहीं की गई। नतीजा ये निकला, डेली वेजर जो 94 में लगा था, जो मुलाजिम आरजी मुलाजिम 94 में लगा था, उस बेचारे की सारी उम्र ख़त्म हो चुकी है, अब वो मजदूरी के काबिल नहीं रहा है। उसके बच्चे बालिग हो गए हैं, वो बेचारे तालीम के नूर से महरूम हो गए, क्योंकि जब बाप के पास पैसा ही नहीं था तालीम देने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म लाने के लिए, स्कूल की किताबें लाने के लिए, ट्यूशन के लिए, तो उसके बच्चे तालीम के नूर से महरूम रहे। नतीजा ये कि वो बच्चा इस कौम का मुस्तकबिल है, वो दूर रहा। ये मैं समझता हूँ ये एक मनसूबाबंद साजिश है कि इस कौम को तालीम के नूर से दूर रखा गया। वो बेचारा रागिब हो गया बच्चा मजदूरी की तरफ, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे ये कानूनन जुर्म है। लेकिन कानूनन जुर्म है, बड़े बड़ी तकरीरें की गई चाइल्ड डेज पे, लेबर डे पे, लेकिन जो तकरीरें कर रहे हैं वही पहले वायलेशन कर रहे हैं। अगर उन्होंने तनख्वाह दी होती हमारे मुलाजिम को तो शायद उसका मासूम बच्चा मजदूरी की तरफ रागिब नहीं होता। एक मसला वो। दूसरी बात यह है कि जो बुजुर्ग वालिदैन हैं उनके हवाले से सरकार ये कह रही है कि हमने ओल्ड पेंशन दे दिया यहाँ के बुजुर्गों, हमें इनका एहतराम है। लेकिन हम उनसे पूछते हैं जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के बुजुर्ग वालिदैन हैं जिनको दवाई के लिए एक पैसा नहीं है, उनका आपने क्या सोचा है?
अगर आप बड़ी तकरीरें करते हो, पहले इस हवाले से तो देखो, आप तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो। अगर आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है। टूरिज्म की बात करेंगे, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है। टूरिज्म वाले 2014 से तनख्वाह से महरूम है। बड़े शो करते हैं वो मुल्क की दूसरी रियासतों में, उस पर करोड़ों रुपया खर्च आ जाता है। हम जल शक्ति की बात करेंगे, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। परसों एक इंकिशाफ हुआ कि पुराना जो चीफ इंजीनियर, जो साहिब का चीफ इंजीनियर यहाँ पे था, उसने 47.5 लाख रुपये वाजवान पे खर्च किए थे, लेकिन उसका डेली वेजर एक दाने के लिए तरस रहा है, एक लुकमा के लिए तरस रहा है। उसका निवाला छीन के वो किसी और को दे रहा है और वर्ल्ड वाटर डे मना रहा है। ऐसी नाइंसाफिया की गई। आप R&D की बात करो, आप बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करो, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमने इस चीज़ को फ़रोग दिया, एग्रीकल्चर को फ़रोग दिया, हम यहाँ की इसको ना यहाँ की मईशियत को फ़रोग दे रहे हैं। उस पे, उन रोड शोज़ पे, उन प्रोग्राम्स पे करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो उस डिपार्टमेंट को चलाते हैं, उस डिपार्टमेंट के चलाने वाले के लिए सरकार के पास एक सिंगल पेनी नहीं है। उसके लिए महाना तनख्वाह, उससे काम लिया जाता है, उसके लिए महाना तनख्वाह नहीं है। एक मामला ये। और दूसरा मामला ये है कि जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है तो उस वक्त ये बातें सामने आ जाती है जो आपने, जिन इल्ज़ामात का आपने जिक्र किया कि ये गलत तरीके से लगे हैं। एक भाई मंत्रालय के अंदर बैठा है, वो कह रहा है ये पाप की घंटी है। दूसरा भाई उसका बाहर बैठा है, अपोजिशन में बैठा है या बाहर सरकार से बाहर है, इस वक्त MLA भी नहीं है, वो कह रहा है ये इंसानी मामला है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, एक ही घर में दो सियासतदान है, एक इसको सही ठहरा रहा है और दूसरा इसको गलत ठहरा रहा है। आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है? हम उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार आप क्लियर करें। तो हम भी यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, हम भी यहाँ से कहेंगे कि हम कितना काम आपका चलाते हैं, हम वो काम ठप करेंगे, तो इनको पता चलेगा ये लोग काम करने वाले हैं कि नहीं है, इन लोगों की वजह से यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन्होंने कुर्बानियाँ दी है कि नहीं दी है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, सियासत में कोई बंदा आ जाता है, कोई लीडर आ जाता है, उसको 2 साल हो जाते हैं, 2 साल के बाद उसको ये लिखा जाता है ये सीनियर तरीन लीडर है। और हमारे बंदे ने 25 बरस अपनी जिंदगी के दे दिए, वो भी दी है कलील तनख्वाह पे। उसको आप हॉस्पिटल वालों की बात अगर हम करेंगे, जो इन अफसरान का, यहाँ के डिपार्टमेंट्स का, यहाँ के अवाम का कूड़ा करकट, इनकी निकासी, इनका सब कुछ साफ करते हैं, उसको आप 100 रुपया महीने दे दोगे, जो आपके एक चाय कप का खर्चे से कम है। आप तो 250 रुपये की, 300 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हो, और आपको शर्म भी नहीं आती है। आप एक कैजुअल लेबर को, एक कंसोलिडेटेड को, एक हेल्पर को 100 रुपया महाना देते हो, इसको 800 रुपया महाना देते हो। आपको उस वक्त ये शर्म भी नहीं आती है। आप इंसानी जहन से ये नहीं सोचते हो कि मैं इसको अगर इतना पैसा दे दूंगा, इसमें इसका घर चलेगा, समाजी ज़िंदगी बसर करेगा, किराया अपना पूरा करेगा, वालिदैन का खर्चा बराबर करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, इस समाज के साथ लेन देन करेगा, क्या करेगा ये 800 रुपये में? चलो ठीक है, 800 के बाद अगर हम बात करेंगे 6,500 रुपये देते हो। यहाँ पे एक पार्टी का प्रेसिडेंट दिन रात ये डोंडोरा पीटता रहता है कि जनाब हमने आधार बायोमेट्रिक किया। मैंने पिछले 5 साल से उसको यही सुनते आ रहा हूँ मैं कि जनाब हमने आधार बायोमेट्रिक किया। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, आधार बायोमेट्रिक करने से क्या हुआ? 7,500 तो हम इससे पहले भी लेते थे, आज भी लेते हैं। आपके आधार बायोमेट्रिक करने से ये हुआ कि डेली वेजर कैजुअल लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको वो साबित भी हो गया। साबित करने के बाद आप LG मनोज सिन्हा साहब के पास चले गए, आप सत्यपाल मलिक साहब के पास चले गए, क्या किया उन्होंने? आपने भी तो उनसे बात की थी, क्या किया उन्होंने? हम उनसे पूछना चाहते हैं, मेहरबानी करके ये ड्रामाबाजी बंद करें, ये सियासतकारी बंद करें, एक बार वो खुले जहन से सामने आ जाए। अगर उनको लगता है कि हम सही है, बोले सही है, अगर उनको लगता है ये सही नहीं है, हम साबित करके दे देंगे हम सही है कि नहीं सही है। हम काम करने वाले नहीं हैं। सज्जाद साहब, एक बात आपके ज़हनशी में कर दूं कि आपको मालूम है कि पिछली बार ICDS की मुलाजमीन जो है, उनका कहना था कि वो 20 साल से इस महकमे में काम कर रहे हैं, उन्हें सीधे से बाहर किया गया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, यहाँ पे एक मिजाज बना हुआ है यहाँ के अफसरों का, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का। आप इनका काम मानोगे तो ठीक है, तो आप मुलाजिम हो, आपसे ये कोविड के दौरान भी काम ले लेंगे, उस वक्त ये डेप्यूटेशन पे आपको कोविड हॉस्पिटल में भी भेजेंगे। यहाँ के आशा वर्कर से, यहाँ के आंगनवाड़ी वर्कर से, यहाँ के डेली विजिट कैजुअल लेबर से ये कहा गया कि आप कोविड के दौरान हर एक घर में जाओ, वहाँ पे वैक्सीन के लिए जाओ, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट के लिए जाओ, उनको सामान वगैरह दे दो। उसके लिए आप डेली विजिट कैजुअल लेबर को इस्तेमाल करोगे, यहाँ के आरजी मुलाजिम को इस्तेमाल करोगे, आशा वर्कर को इस्तेमाल करोगे, आंगनवाड़ी वर्कर को इस्तेमाल करोगे। जब यही आंगनवाड़ी वर्कर, जब यही
خارجی मुलाजिम आपसे तनख्वाह का मुतालबा करेगा, क्योंकि हक तो बनता है ना, बेकार तो आप नहीं ले सकते हो, लेकिन आप तो ले रहे हो, इस जदीद दौर में भी आप बेकार ले रहे हो। जब यही बंदा तनख्वाह का मुतालबा करता है तो अफसर को लगता है शायद मुझे अपनी जेब से देना है, शायद मुझे अपने घर से देना है, तो वो नाराज़ हो जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस मुलाजिम को तंग व तलब करता है। और आखिर पर जब उसको लगता है कि इन्होंने प्रेस कॉलोनी का रुख किया, ये रोड पे आ गए, इन्होंने सड़कों का रुख किया, अब लोग इनको सुनेंगे, लोगों तक इनकी हमारी हकीकत सामने आ जाएगी, से इनसे काम लिया जाता है और इस दौर में भी इनसे बेगार लिया जाता है, तो फिर आखिर पर ये कहा जाता है कि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यूज़ एंड थ्रू पॉलिसी क्यों कर रहे हो? एक बंदा जो आपको 20 बरस से आपके डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहा है, क्या आपका हक बनता है कि आप उसको 20 बरस के बाद ये कहो कि आप चले जाओ यहाँ से? ये तो नाइंसाफ़ी, ये सरासर नाइंसाफ़ी, इंसानी हुकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। और हमें गिला है, इस दौरान हम ये भी कहेंगे, हमें गिला है जो यहाँ के हायर अप्स है, जो यहाँ के हायर अथॉरिटीज़ है, जो दिन रात ये कहते हैं कि हम नया कश्मीर बनाएंगे। क्या नया कश्मीर यही है जो पिछले 20 बरस से मेहनत कर रहा है, पिछले 20 बरस से अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, यहाँ के आवाम की खिदमत करते करते उसने सब कुछ अपना बर्बाद किया, बच्चों की तालीम बर्बाद की, अपना सब कुछ। अगर हमारे मुलाजिम ने वही 20 बरस का टाइम कारोबार में दिया होता तो शायद मुझे लगता है उसकी हालत दूसरी होती। उसने ये सारा टाइम आपके डिपार्टमेंट को दे दिया और आप इसको इस वक्त निकाल रहे हो। मेहरबानी करके आप खुदारा इंसानी दायरे के अंदर सोच कर फैसला ले, एक मसला ये। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो तो उसके बाद कोर्ट चले जाते हैं। जब कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट चले जाने के बाद जिस दिन वो कोर्ट में जाते हैं, एक तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है, फिर वो मातम करना चाहते हैं, इस हवाले से तज़ियत करना चाहते हैं इनको, फिर उनको तज़ियत करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, उनको रोने की इजाज़त नहीं दी जाती है, उनको सड़क पे आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उस वक्त क्या कहते हैं, ये तानाशाह बन जाते हैं। उस वक्त नहीं जी आप इस दिन ड्यूटी पे नहीं आए थे, आपको एब्सेंटी डाल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? सजाद साहब, LG साहब इस वक्त इख्तियार पे बैठे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो पिछले सियासतदान थे जिनके बस में ये था कि वो आपको रेगुलर करते, लेकिन उस टाइम वो टस से मस नहीं हुए, अगर आज उस सियासतदान के पास आप जाएंगे जो साबिका है, तो वो इस बात का एतराफ़ करता है कि नहीं जी इनको अब रेगुलर कर दीजिए, लेकिन जब वो इक़्तिदार में था तब उसने ऐसी बात नहीं की। क्या आपको लगता है कि अब भी वही ट्रेंड है कि शायद आने वाले इलेक्शंस है तो उसमें हम इनकी बात करें तो शायद इनके जहन में बैठ जाएगा कि ये हमारे लिए कुछ करने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि वही दुगनी पॉलिसी चल रही है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, जो पुराने सियासतदान यहाँ पे थे, जो रीजनल पार्टीज़ के सियासतदान थे, जो पावर में थे, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, जब उनके पास पावर था, चाहे उनके पास फाइनेंस था, चाहे कुछ और था। हम एक फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे, जब उसके पास गए तो उसने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले से मांगो। ऊपर वाले से तो मांगते हैं, लेकिन उसको तो कुर्सी पर बिठाया था लोगों ने इसलिए कि ये लोगों की खिदमत करे, लोगों का काम आसान करे, अगर किसी को नहीं आया तो उस कमी और उस खामी को दूर करे। जब उसने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की? सियासतकारी की, अपने मकासद के लिए, अपने नीच मकासद उसके थे, तो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने रोया, डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने एहतिजाज किया, अल्लाह के दरबार में पुकारा, तो अल्लाह की लाठी में तो आवाज़ नहीं है, आज उसका नाम निशान नहीं है। डेली वेजर्स कैजुअल लेबर मुझे लगता है रेगुलर होने वाला है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान, आज कल डेली वेजर रेगुलर हो जाएगा, लेकिन उस सियासतदान का कोई नाम निशान नहीं है। उसके आप जो हवारीन है, उसके जो साथी है, आप तो वो पुकार रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह ऊपर देख रहा है और अल्लाह ने हमें उस चीज़ की सज़ा दी। तो उन्होंने क्या किया, अब वो बड़े बड़े बयानात इस हवाले से दे रहे हैं, लेकिन उन बयानात का कोई मकसद ही नहीं है। अब हमें उसके बाद उम्मीद थी कि जो ये दूसरी पार्टीज़ जो नई यहाँ पे आ गई, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ है, शायद ये करेंगे, इनके पास मरकज़ में सरकार है, ये यहाँ पे करेंगे, लेकिन वो तो वैसी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, वो तो वैसे बचगाना बयाना दे रहे हैं, पहले हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ। यार आपको कौन चीफ मिनिस्टर बनाएगा? कौन आपकी पार्टी में हिस्सा ले लेगा? कौन आपके इलेक्शन में हिस्सा ले लेगा? कौन आपको वोट देगा? आपने तो लोगों को
उस वक्त नहीं किया है, उस वक्त मदद आपने नहीं की जब मरकज़ में आपकी सरकार थी। अगर आपके मरकज़ में सरकार होते हुए आपने लोगों की मदद नहीं की, जब मरकज़ में आपकी सरकार नहीं होगी फिर आप स्टेट में होंगे, आपको इसलिए कौन मदद करेगा? एक मामला वो। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद हमें लग रहा था शायद यूटी बन गई है, यूटी के हवाले से यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो सईद इकबाल मलिक जी थे, वो शायद इस हवाले से कोई ना कोई फैसला ज़रूर ले लेंगे, वो इस हवाले से कोई ना कोई प्रोग्राम या प्लान सामने लाएंगे, कोई पॉलिसी सामने लाएंगे। लेकिन वो बातें बहुत ज़्यादा करते थे और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ऐलानात भी किए। वो पब्लिसिटी चाहते थे, वो न्यूज़ में आना चाहते थे। आखिर पर जब देखा उसने एक मीटिंग भी डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से नहीं की। आज की बात करेंगे, मुझे लग रहा है आज भी जो आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वही रिवायती टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार कर रही है। 2 बार मीटिंग बुलाएगी, 2 बार मीटिंग बुलाने के बावजूद भी एक बार भी नहीं हुई। चलो ठीक है, मसरूफियात होती है, सरकारी मजबूरियाँ हैं, आज मीटिंग नहीं हुई तो कल करनी थी। पिछले 1 महीने से ये कहा जा रहा है कि आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, मीटिंग तो हुई नहीं। ये नाइंसाफी है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के साथ, और ये वही रिवायती टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर पूरा हम डिस्कशन करें सजाद साहब के साथ, लगता है कि शायद ये बोलते जाएंगे और आप इतनी शिकायतें सुनेंगे कि आप भी थक जाएंगे कि कितनी नाइंसाफ़ी है। यही वो डेली वेजर है जिसे हर महकमे में इस्तेमाल किया जाता है, यही वो शख्स है जो सफाई कर्मचारी है, यही वो शख्स है जो यहाँ पहाड़ियों पे जाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, इन्हें बुलाया जाता है। हर मरहले पे जहाँ पे सरकार को मुश्किलात का सामना हो जाता है, इन्हीं डेली वेजर्स से काम लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनसे कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ की सरकार को चाहिए कि एक बार वो इस बात पे गौर करे। अगर हम 1 महीने के लिए मिसाल के तौर पर कहेंगे कि जितने भी डेली वेजर्स यहाँ पे काम करते हैं, मुस्तकिल नहीं हुए हैं, उन्हें कहा जाए कि 1 महीने के लिए आप काम बंद कर दो, आप देखेंगे कि कश्मीर की हालत क्या होगी। सारे कश्मीर में क्या कुछ मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब यहाँ के लोगों को, यहाँ की सरकार को पता चल जाएगा कि कितने अरसे दराज से ये तरस रहे हैं पैसों के लिए। आप तो छोड़िए, मुस्तकिल की बात छोड़िए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी तनख्वाहें जो है अरसे दराज से बंद पड़ी है। वो वालिद जिससे सुबह अपना छोटा सा बच्चा बोलता है कि पापा मुझे वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, लेकिन अपनी जेब में 40 कौड़ी नहीं है उसके पास। यही मुलाजिम जो है कि उम्मीद पे कर्ज लेता है कि शायद कल को मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन वहाँ भी उसको नाउमीदी हो जाती है। हर बार अब तक इसको नाउमीदी सामने आई, अब की बार सजाद साहब पूरी उम्मीद है इनके मुलाजमीन इन पे एतमाद करते हैं, और शायद अब की बार सभी की निगाहें लगी हुई है कि अब सरकार इंशाअल्लाह इनके मसाइल जितने भी है वो हल हो जाएंगे और इन्हें राहत नसीब हो जाएगी। हम सजाद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, जितनी भी इनके पास नॉलेज है, अगर उस तरीके से हम इनसे डिस्कशन करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया।